Assalamu alaikum. Today class we explain the shortcut tricks of MSET. MSET shortcut tricks. Topic is trigonometry. Trigonometry में जो shortcuts है उसके बारे में discuss करें तो उसके थोड़े problems जो previously years में दिए गए हैं उसको explain करें. This is traditional method. This is shortcut method. Okay. In this shortcut method we discuss these problems. So these are very helpful for your practice. Okay. Like 40 degrees plus theta plus cos 120 degrees plus theta plus cos 220 plus theta plus cos 300 plus theta. You have to find these values. Okay. अब इसको elaborated expand करना है तो in general नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं इसको cos 40 plus theta plus this can be written as cos 180 minus 60 plus theta. ये मैं इस मेथड में करते हैं एक्सपैंडर में तो ये लेंथी मेथड हुआ जैसे शॉर्टकट now this problem में in this problem if you put theta is equal to 0 assume theta is equal to 0 plus cos 220 plus 0 plus cos 300 plus 0. So obviously this will become cos 40 plus cos 120. 120 can be written as 180 minus 60. 220 can be written as 180 plus 40. 300 can be written as 360 minus 60. According to all silver teachers, four quadrants are there. All silver teachers. First quadrant all are positive. Only sin cos is positive. Sin and secant cosecant are positive. Tan cot are positive. Cos and secant are positive. So in particular according to cos, ये प्रॉब्लम में cos है. cos के बारे में देखें तो cos 180 minus 60. 180 minus this is 0 degrees. This is 180 degrees. 180 minus is second quadrant. Second quadrant में it is negative. So we will get minus cos 60. Sorry. Plus 180 plus is this one, third quadrant. It will be negative. Minus cos 40. Fourth quadrant is cos 60. So answer is 0. Answer is 0. So this is the first question. So ये question को expanded form में नहीं करके भी in a shortcut we can do like this. Okay. For example, another question is there. This question, most important question है. If tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha by sin alpha plus cos alpha, what is the value of sin alpha minus cos alpha k sin theta? We need to find k here. Then k value. See, tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha by sin alpha plus cos alpha. This is given. अगर इसको पूरा simplify method में हिंदी वेब में करें तो it will take minimum 5 minutes. Okay. इसको sin cos alpha से डिवाइड करना है. जनरल मेथड जो है tan theta is equal to sin alpha by cos alpha minus cos alpha by cos alpha by sin alpha by cos alpha plus cos alpha by cos alpha. So it will become tan theta is equal to 1 minus cot theta, cot alpha. This is tan alpha minus 1 by tan alpha plus 1. So if you take minus common, you get 1 minus tan alpha by 1 plus tan alpha. This is
is the formula of pi by 4 minus alpha. अगर इसको अंदर भेजे tan alpha minus pi by 4 होता, तो tan निकाले तो theta is equal to alpha plus pi by 4. Theta, so pi by 4 is equal to alpha minus theta. So half of the problem को भी ऐसा लग गया. Now we will go for a shortcut. Now we will go for a trick or shortcut. सर क्या करेंगे? शॉर्टकट क्या है? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री स्क्वायर. ओके, देन tan LHS में क्या है? tan 45 is equal to what? Okay, now you take alpha has 90 degrees. तो RHS क्या होगा? sin 90 minus cos 90 by sin 90 plus cos 90. 1 minus 0 by 1 plus 0, 1. So LHS is equal to RHS हो गया ना? So no need to do other paper also. खाली दिमाग में कर सकते हैं. तो exactly equate कब हो रहा है इसका? आपको समझ में आ रहा? उधर जो है थीटा की जगह 45 आ रहा है. tan 45 क्या हो? 1 होगा. इधर अल्फा की जगह 90 डिग्री आ रहे हैं. sin 90 is 1, cos 90 is 0. So 1 minus 0 by 1 plus 0 equal to 1. So the equation, the given equation is satisfying. So what we need to prove? We need to prove sin alpha minus cos alpha k into sin theta. Just now we assume it has 90 degrees. So this will become sin 90 minus cos 90 is equal to k into theta is 45 degrees. So this is 1 minus 0. 45 value is 1 by root 2. 1 is equal to k by root 2. करे तो भी क्या आंसर का 50% भी रीच नहीं करे. तो लॉजिकल मेथड इधर अप्लाई कर लिए. सेकंड साइड तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन. ये बहुत इजी है. ओके, इसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है. व्हेनेवर द गिवन इज एंगल सिलेक्टेड, ये बिट्स उसको यू कैन डू thousands of bits. If you understood this bit, you can apply for thousands of bits. Okay, so what is given here? A, B, C are the angles of the triangle. So आपको टाइम वेस्ट नहीं करता इसको elaborate करने. Directly I will go for trick. ठीक है. Whenever the angles are of the triangle, you have to take A is equal to B is equal to C is equal to 60 degrees. Then what is the question? Cos of 180. क्यों 180 बोले? ध्यान बोलो. 3A 360 are 180. B 120. C 60 by 2. Cos 60 minus 60 by 2. Cos, this is overall again 360 by 2. Cos 0 by 2. Cos 180, cos 0. Cos 180 value is minus 1. Cos 0 value is 1. Overall the answer is 0. Okay. Now option 1 में भी 0 है, तो checking करेंगे. First option 0 it is correct. Second option 1 it is wrong. Second option if you keep 60 degrees it will be 1 by 2 wrong. Third option against cos 60 1 by 2 wrong. So directly cos फर्स्ट वैल्यू इज द करेक्ट वन. तो सिंपली अगर आप विदाउट गोइंग फॉर लॉन्ग प्रोसीजर, हिंदी प्रोसीजर में जाके इजी फॉर्म में हो गया. ओके, सो मैथ्स अभी एमसेट नियरली 40 डेज से भी लेसी है. यू आर हैविंग काउंट डाउन 40 डेज. ओके, 40 डेज मैथ्स, ओनली मैथ्स देयर आर नियरली 50 प्लस चैप्टर्स. Physics, chemistry, again 50 plus chapters, 100 plus chapters, lakhs of formulas. Remember करके MSET apply करना, crack करना, it is highly impossible. So definitely you have to go for
shortcut tricks to crack the answer. Okay. See the next question. Fourth question. This is very important. बहुत important. अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा 45 डिग्री अप्लाई कर रहा हूँ. Okay. Just trigonometrical value table. All of you should remember the 10th class trigonometrical value table. Value table कैसा है आपको? तो वैल्यू टेबल देखो इसका 0 डिग्रीज 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज 60 डिग्रीज 90 डिग्रीज साइन कॉस tan cot secant cosecant. इसमें भी मेन थिंग्स. So 45 डिग्रीज पे 1/√2 1/√2 tan 45 पे 1 सेकंड पे इसका वैल्यू कम कर दिया 1 सेकंड का √2 45 डिग्री पे दिस टू आर इक्वल and these two are equal. Moreover 0 is 0 1 1 0 here. This is 0 infinity 0. Again cos cosecant is 1 infinity 0. देखो ये वैल्यू ऐसा याद कर सकते हो. दिस वैल्यू इज 1/2 √3/2 √3/2 1/√3 1/√3 √3 2/√3 2/√3 finally 2. Trigonometric value is you learn in 10th class and intermediate. Okay. Now what is the given thing here? Sin 45 का वैल्यू क्या है 1/√2. Cosecant 45 का वैल्यू is √2 whole square. Similarly 1/√2 plus √2 whole square. Tan 45 is 1 cot 45 is 1. ये समझ में आया? All of you understood this one? Yes. Okay, very easy. Just to sin alpha के जगह 45 यूज करें तो वैल्यू सप्लाई करना है. So here LCM √2 आ रहा, इधर भी √2 है 1 plus 1. Now if you take LCM here √2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 1 1 1 प्लस √2 into √2 क्या होता है √4 होता है. Okay, √4 is nothing but 2. √2 into √2 is √4 which will become 2. Okay, similarly here also 1/, so 3/√2 whole square 3/√2 whole square is equal to k plus 2. 9/2 होता है ये भी 9/2 minus 2 is equal to k. 9 plus 9 18/2 minus 2 9 minus 2 k value is 7. So in this way you can do the problem very easily. Okay, shortcut समझ में आया इसका ट्रिक. Okay, next question. Okay, cos x is equal to 1 minus cos square x which is equal to sin square x. So here according to this rule cos x is becoming sin square x. Okay, now in the given question it is sin power 8. I can write sin power 2 f4 whole square plus 2 into sin power 4 sin square plus sin square x whole square. It is in the form of a square plus 2ab plus b square. So which is a plus b whole square. Okay, you know the value of cos x is sin square x is cos x. So what is, again do squaring on both sides, it will be cos square x is equal to sin power 4x. Okay, this value is nothing but cos square x.
according to theta, cos x plus cos square x is 1. 1 square is 1. Okay, answer is 1. Another important thing, shortcut, cheat code. You can say cheat code. Here the options are 0, 1, 2, -2. Whenever the in question जो symmetric होता है, so these two will be eliminated. इन दोनों में से एक आंसर आता है cheat code. Okay, symmetric रहता है, symmetric में ही एक आंसर आता है. Okay, वो कौन सा आंसर होता है? That depends upon your luck and guess. तो 50% तो eliminate होगा ना. So choosing the answer from out of 4 is 25% success rate. Maybe 25% में लग सकता नहीं लग सकता, but choosing out of 2 it is 50%. Okay. Next. Now this answer is sin of cos alpha plus cosecant beta minus cot beta minus secant alpha whole square. So we put alpha is equal to 45 degrees. According to our trick. खाली सुने तो बस है. No need to do practicing. Bits जो है memorize करना, 1 लाख bits, 2 लाख bits, practically impossible. So if you do these shortcuts only, you can crack MCET. Okay. तो अब देखो, you go for Deepti, Narayana, how many bits are there? N number of bits. उसमें से कौन सा एक ही trigonometry में at most you will get 3 or 4 bits, maximum 5 bits. तो 5 bits को I can say there are 5 lakh bits कर सकते हैं. If you start solving that, it will उसमें से out of 10 you can't solve 5 by general formulas. So according to these tricks, in that 5 lakh, if you apply these tricks, you can do 2.5 lakh bits in one shot. Okay. So ये alpha की जगह अप्लाई करें तो tan 45 plus cosecant 45 whole square. This value is 1, this value is root 2. Similarly, this value is 1, this value is root 2. Okay. इसको expand करें, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus 2ab, 3 plus root 2 minus 3 plus root 2, 4 root 2. This is our original answer. Now we have to go for options. Option 1, tan is 45, 1, 1, root 2 plus root 2, 2 root 2, so 4 root 2, it may be correct. Second option, root 2 into root 2, 1 plus 1, 2 into 2, it is 8, wrong. Another option, 1 into 1, again alpha beta, root 2 plus root 2. 4 root 2, this is also correct. This one is root 2 into root 2, 1 plus 1. Again this will be 8. So ये अप्लाई करके भी अपना क्या हुआ? So you got 2 answers. What is the options है? आपको 1 or 3. आप इसमें गेस करके आप अप्लाई कर सकते हैं. सर 50-50 चांस आया, अब कोई ये डाले में भी करेक्ट हो सकता, कोई सी डाला में भी करेक्ट होता. ओके सर, हमारे एग्जैक्ट आंसर बना है. वी डोंट नीड दिस assumptions. Okay, you give us exact answer. Okay, then we have to go for another values, 30 degrees or 60 degrees. Now apply alpha is equal to 30, beta is equal to 60. The answer is आपको LHS में क्वेश्चन क्या होता है? tan alpha is tan 30 is 1 by root 3, but 60 is also cosecant 30 का वैल्यू क्या है? cosecant 30 का वैल्यू अभी भी क्या बताए ट्रिग्नोमेट्री में? cosecant 30 का वैल्यू है 2 है. ओके, cosecant बीटा, cosecant 60 का वैल्यू क्या रहता है? 2 by root 3 by 2 है ना, उसका रिवर्स 2 by root 3, सही है ना? माइनस cot बीटा is बीटा का वैल्यू 60, 1 by root 3.
सीकेंड 60 का वैल्यू क्या है 2 आता है। सीकेंड 60 का वैल्यू सीकेंड अल्फा है ना 30 होल स्क्वायर 3/√3 होल स्क्वायर minus 1/√3 whole square, that is 9/3 minus 1/3. So this value is getting 8/3. थोड़ा अगर एक केसेस पे थोड़ा करना पड़ता, ओके 45 पे तो इजी कर सकते हैं, 30 60 पे थोड़ा करना पड़ता, ओके नो इशू। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 2 tan alpha is 30 cot beta 60 cosecant alpha 30 secant beta 60। अब ये करेक्ट नहीं आया तो ऑब्वियसली सी करेक्ट है, ओके। इसका वैल्यू 1/√3 कोसेकेंट 30 का वैल्यू क्या है sin 30 2/3 into 4 is 8/3। so this is correct, double correct। so here in this topic option 1 is correct। सर मैं तो थर्ड भी करके देखो सर, आप गलत करें शायद देखेंगे, मेरे को भी डाउट आ रहा देखिए करेंगे। राउंड का थर्ड ऑप्शन थर्ड, इसमें tan alpha cot alpha is 30 60 into secant 30 cosecant 60 √3 इसका वैल्यू 2/√3 4/√3 8/√3 आया, तो आपको 8/3 आना है। ये दोनों को मैच कर दो, मैक्सिमम किसका है, दिस इज रॉन्ग, ओके। ये एक मेथड है, ओके ये अलग है। सो व्हेन यू अप्लाई अल्फा की जगह 45 बीटा की जगह 45 यू गॉट टू ऑप्शंस। व्हेन यू अप्लाई अल्फा की जगह 30 बीटा के 60 यू गॉट वन आंसर, सिंगल आंसर आ गया, ओके समझ में आया आपको। नाउ अनदर क्वेश्चन, secant alpha secant beta plus tan alpha tan beta माइनस इसका वैल्यू है, डायरेक्टली मे बी अल्फा वैल्यू आ जाता, ओके। अल्फा की जगह 45 बीटा की जगह 45 अप्लाई करो, इट विल बी √2 into √2 plus 1 into 1 whole square minus √2 into 1 plus √2 into 1 whole square, 2 plus 1 whole square √2 plus √2 whole square 3 square 2 √2 whole square 9 4 into 2 1 is the answer। मैं पहले भी बोला जब सिमेट्रिक आता एक ये दोनों में से गेस कर सकते हो, चीटिंग बोल में बोला, समझ में आया। सो डे 1 से आपको एग्जाम के बिफोर एग्जाम 5-7 days 6 days इंपॉर्टेंट क्या है, चीटिंग कोर्स क्या है, ये कब द you should not practice at that time। from day 1 you have to inject all the shortcuts, formulas, traditional methods, cheat codes from day 1। after 15 days you should write every day one mock test। if you go into write 15 to 20 mock test up to examination, उसका पेपर पे स्कोर नोट करें, 100% you can crack MCET। MCET में एक important announcement क्या है, इन जनरल आज इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बात अभी जो नोटिफिकेशन आया राइट रिसेंटली वी अभी आपका नोटिफिकेशन एमसेट का नोटिफिकेशन इंडिविजुअली पढ़े, एक्सपर्ट्स पढ़ के रिसर्च करे, तो व्हाट यू थिंक दैट व्हाट इज द क्वालिफाइंग मार्क 40 मार्क्स। सब सोच रहे थे 40 मार्क्स आए तो क्वालिफाई हुआ थे, यू विल गेट फ्री सीट इन वॉट एवर कॉलेज इट इज, बट इट इज रॉन्ग है। 40 मार्क्स आए तो आपको क्वालिफाई नहीं रहता,
आप यहाँ टोटली आपका 4 days एग्जाम चलता है. हाउ मेनी डेज? 4 days. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. एवरी डे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून 2 सेक्शन. टोटल एग्जाम्स कितने रहते? 8 एग्जाम्स रहते हैं एमसेट. कोई एग्जाम टफ रहता, कोई एग्जाम इजी रहता. ओके, इसके बाद एक शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करते हैं जो ग्रेडिंग रैंकिंग देते ना, नॉर्मलाइजेशन बोल के रैंक देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड डे का सेकेंड एग्जाम है, यू आर गोइंग टू राइट. You got 45 marks. Assume you got 45 marks. But the paper is very easy. After doing certain formula of normalization, you will get result 38 marks. Okay. Same scenario. 2, 3, 4, 5. आप फोर्थ का डे मॉर्निंग सेक्शन में लिए. आपका फोर्थ इसमें जो है पेपर मॉर्निंग सेक्शन में लिए, आपका मार्क्स आए 45 मार्क्स. अगेन 45 मार्क्स आए. ये पेपर जो है उस एमसेट का पूरा टफेस्ट एग्जाम है, टफेस्ट पेपर है. उसके बाद उसको नॉर्मलाइजेशन करें, आपको रिजल्ट आता 53 मार्क्स. बात समझ में आया? मार्क्स कुछ यू करके आते ना 40 मार्क्स या 45 मार्क्स या 50 मार्क्स या 70 मार्क्स. आफ्टर डूइंग नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन और डिक्रीज इन मार्क्स ऑफ 7 to 8 मार्क्स. दोस्त आर हैविंग डाउट, राइज योर हैंड. किसको डाउट है? आप पे आपको डाउट आया? है बात समझ में आया? क्या बोले? 46 मार्क्स ही है, बाद में 55 रैंक को देखो. उस दिन का एग्जाम टफ है या इजी है, उस पर क्या करते? टॉपर को कितने मार्क्स आए? जो टॉपर उस सेशन का टॉपर हाउ मेनी मार्क्स इज गेटिंग 0.1% उसका करके नॉर्मलाइजेशन करते. उसके बाद देयर विल बी अ वेरिएशन ऑफ 7 to 8 मार्क्स मिनिमम. दैट्स व्हाई बहुत बच्चे जो सर मेरे को 40 मार्क्स आए बट रिजल्ट में 37 आया, रॉन्ग आया. भाई करेक्ट है. देयर इज ए प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन. उसके लिए बड़ा एक फार्मूला आता, वो जो है आपको नोटिफिकेशन में जो है ना, एमसेट के नोटिफिकेशन में है नॉर्मलाइजेशन. पर रीड इट. प्रॉस्पेक्टस पे जो है हाउ द रैंक विल बी डिसाइडेड इन द फी स्ट्रक्चर देयर इज द उसको लिखे है क्लियरली. सो एवरी स्टूडेंट शुड टारगेट फॉर 55 मार्क्स. सो व्हाट इज योर टारगेट? 55 प्लस मार्क्स. ओके, मिनिमम आपको आज के क्राइटेरिया में कल के इस पे रैंक्स बता दूं मैं. So the person how much rank you will get? So if you get 90 to 100 marks, yeah, 80 to 90 marks, 70 to 80 marks, 80 to 60 to 70 marks, 50 to 60 marks, 40 to 50 marks. Okay, what will be the ranks? The rank will be here 60 lakhs to 60,000 to 1 lakh rank आता. If you get marks between 40 to 50, like previous year का strategy में ये rank करा. Drastically इसमें कितना होता है? When you get 50 to 60 marks, देखो 30,000 से लेके 60,000 मार्क्स. Okay, when you get 60 to 70 marks, the rank will be 25,000 to 30,000. यहाँ पे 12,000 to 7,500. now 5,000 से 7.5. now below 1,000 to 2,000 ranks have added last year also. So just देखो marks बढ़ते पे, if you get 55 marks you will get 25,000 rank. उसमें भी माइनॉरिटी रैंक अलग रहता, BC SC ST का रैंक्स अलग रहते, जनरल रैंक्स बदल जाते हैं. ओके, सो वेरी इजीली आप 70-80 मार्क्स भी टारगेट करें, आपको नियरली 20,000 से लेके 10,000 के रैंक आ जाता. ओके, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं.
How? And another thing, those students who are getting below 10,000 and 5,000 rank आते ना, they will not go for MSET. वो लोग क्या करते हैं? They will go for NIT and other sectors में चले जाते हैं. तो वो भी placements आपके ही आया है. वो there are many ways. बहुत logically रहता, बहुत आपको carefully choosing the colleges, getting the marks, बहुत carefully day one से plan करना. और maximum student, luckily you should be very happy. Out of 2 lakh students, only 10% students are going to coaching centers studying online. Other students they are not bothered about MSET. They are thinking that MSET is very easy. ABC डाल दिए या कुछ. No, 100% वैसे सिनेरियो पे नहीं होता. And you should pray that. आप लोग क्या करना? No one should come to compete with me. अब पूरे बच्चे सोचे तो आप लोग जरा भी मेहनत कर दो, पास छुआ दो. Okay, बच्चे कोई भी नहीं आ रहे, हम भी नहीं आएंगे, ऑनलाइन में पढ़ेंगे नहीं. तो that you should be, as a coaching center, we should feel unhappy. बच्चे ज़्यादा नहीं आ रहे, फीसेस नहीं आ रहे, but you should feel happy. Your competitors are sleeping. Okay, you are very happy. But in IP, पूरे competitors हो गए. If you get 20 marks, you are fail. Okay, हाँ, fail pass का marks fix है, यहाँ fix नहीं है. If no one is going to apply for MSET, you got 41 marks, you can get CBIT college. कोई भी अप्लाई नहीं करा CBIT में 100 marks आते भी, आपको 41 marks है. If you apply CBT, you will get computers. That is competition. Okay, वो चीज समझ लेना. Okay. So आप क्या करते? सब बच्चों के क्या करते? आपको पढ़ा हुआ देते, आप लोग पढ़ने के बैठ जाते. नहीं? Basically, next question देखो. इन जनरल मेथड, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड में करें, हाउ मच टाइम इट टेक? देखो, इन जनरल में सीकेंट ए प्लस टैन ए माइनस 1, सीकेंट ए माइनस टैन ए प्लस 1 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट? इसको वन सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाय cos a बोल के राइज हो रहा है. एक दो बच्चों को बोलो, बाकी ना भूल गए. फर्स्ट ईयर में क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टैन ए? Sin by cos. Only 3-4 students. Minus 1. Similarly, this is also 1 by cos a minus sin a by cos a plus 1. So if you take cos a LCM, 1 plus sin a, LCM रहने से ऊपर जाके cos a होता. Cos a LCM. Don't get tension. समझ में नहीं आ रहा कोई टेंशन रखो, शॉर्टकट पढ़ा लो. Okay, plus cos a प्लस sin a माइनस cos a, इधर 1 माइनस sin a माइनस cos a, माइनस कॉमन लिया, cos square a. Okay, then it will become 1 plus a plus b into a minus b, 1 square into sin a minus cos a whole square by cos square a. Next 1 plus, if you expand it, you will get sin square a प्लस cos square a minus 2 sin a cos a. बाहर माइनस है. ओके, बाय cos square a. ओके, सब में इसमें भी मिस्टेक कर दिया देखो. प्लस sin a cos a माइनस कॉमन ले दो sin a cos a. माइनस आता है. ओके, इसको एक्सपैंड करके पूरा हिंदी मेथड में करें तो आंसर आता है. ओके, देन आल्सो देयर इज अ चांस ऑफ डूइंग रॉन्ग. वो भी पर्टिकुलर में आता नहीं आता नहीं मालूम. सो शॉर्टकट ट्रिक है. पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री. 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करें इसमें. Secant 45 is root 2, tan 45 1. Root 2 minus 1 plus 1. Root 2 into root 2, root 4, the answer is 2. Check options. Option 1 check करें तो 2 sin 45 is 1 by root 2. Wrong. Cos 45 1 by root 2. This is also wrong. Secant 45 root 2 wrong.
1 2 correct. So this is the correct option. So ये प्रैक्टिस करना अच्छा है, पूरा करना अच्छा है. ओके, तो दिस वे प्रैक्टिस करोगे आपको फायदा ज़्यादा है. नाउ थीटा की जगह क्या रखते हैं यहाँ पर 5/4 रख देते इजीली. 45 सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या होगा √2 1/√2 √2 1/√2 1 + 1. थोड़ा प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी आता है. सो ये क्या होगा 2 - 1/√2 2 - 1/√2 2 1 into 1/√4 into 2 1/2 into 2. आंसर इज 1. अब ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन चेक करो 45 लिखे तो 1/√2 1/√2 2 आता राउंड है. सेकंड ऑप्शन 1 into 1 4 आंसर √2. तो 4√2 आता राउंड है. ऑप्शन 3 √2 into 1 4√2 राउंड है. ऑप्शन 4 1 करेक्ट. ओके, चेक करना 1 भी दिखा इसमें भी 1 कुछ होता है कि चेक करना. ओके, डायरेक्टली नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड्स में कर दे रहे. इसमें भी अब x = 90 डिग्री रख दो. साइन पास आए जब 90 0 को प्रिपेयर करो. 90 सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या होगा 2 into 1 + 0 1 + 1 + 1 2 into 1 -3 into 2 + 1 2 - 6 + 1 3 - 6 -3. ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग है शायद. 1 पास है पास 90 0 ये पास को कुछ होता है. क्वेश्चन में मिस्टेक है. आंसर आ गया कैसा चेक करो 0 आ रहा. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे Sin की पावर 6x plus cos की पावर 6 is 1 minus 3 sin square x cos square x. साइन है कुछ पास है वो भी साइन है. Sin की पावर 6x plus cos की पावर 6. नहीं ये साइन है साइन है ना cos ये cos हो गया ना. और सर cos का काम है पैटर्न नहीं बना. ये रॉन्ग है. दैट्स व्हाई सिर्फ द क्वेश्चन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग. तुमको सा क्वेश्चन लिखे खाली cos कितना था? क्या पे cos लिखे इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा चेक करेंगे. ये वाला क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं x के जगह 90 सब्स्टिट्यूट करो 3 into 1 + 0 whole power 4 6 into 1 - 0 whole square 4 into 1 + 0 3 + 6 + 4 13. इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. जल्दी हुआ था ना एक्सपेंड करना. ओके, ये वाला इजी है ना. ओके, नेक्स्ट वाला देखो ए के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 45 डिग्री. टैन कट आया तो गो फॉर 45 डिग्री. साइन कॉस आया तो 90 डिग्री. तो क्या था 1/√2 1 + 3 3 + 1 -3 into √2 -10 into 1/√2. तो ये क्या होता है 1/√2 into 4 into 4 3√2 -10/√2 16/√2 -10/√2. तो ये क्या होगा 6/√2 -3√2. तो ये कैंसिल कर दो. एलसीएम ले लो √2 एलसीएम ले लो तो 2 आता 6 - 6/√2 0. So 0 is the correct option. Okay, सर आप बोले ना -1 की बना प्रॉपर्टी proportional नहीं हर बार नहीं. 50 cheat codes will work out for only 50%. ट्रिक्स 99%. चीटिंग कोड जो अप्लाई करते हैं लेंदी आंसर है 0 है वो 50% ही करेक्ट होते हैं. 50% रॉन्ग हुआ. ओके, नाउ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा = 45 आते थे 45 डिग्री आया तो a into 1/√2 whole square b into 1/√2 whole square is equal to c. a/2 plus b/2 is equal to c. a plus b is equal to 2c. ओके, 2c आ रहा है तो वैल्यू क्या होता है a plus b is equal to c plus c. ओके, नाउ 1 आना बोले तो देखो c इधर आया a minus c is equal to c minus b. ओके, a minus c by c minus b is equal to 1. ये 1 आता ना ऐसा भी. तो आंसर है a minus c c minus b. ये वाला है ना आंसर. ओके, समझ में आया ठीक. फिर एक बार समझा रहा कहाँ से समझा रहा क्या तक समझ में आया शुरू से समझा रहा.
पूछो, अगर समझ में नहीं आया तो राइज द डाउट. ओके, इफ यू अप्लाई हियर a into sin 45 is 1 by root 2 whole square, b into cos 45 is 1 by root 2 is equal to c. This is a by 2 plus b by 2 is equal to c. a plus b is equal to 2 LCM लिया तो बन जाता c. a plus b is equal to c plus c. a minus c is equal to c minus b. a minus c by c minus b is equal to 1. That is 1 is nothing but tan square 45, which is tan square theta. So tan square theta is equal to a minus c by c minus b. समझ में आया ना? तो इजी मैंने कर लिया, खाली छोटा ट्रिक अप्लाई करें. ओके, हियर सबस्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 45 अगेन. तो क्या होता है, √2 होल पावर 4 1 minus 1 by √2 होल पावर 4 minus 1. tan 45 बोले तो 1, tan 45 बोले तो 1 secant √2 sin 1 by √2. ये चीज़ें जो है टेबल देख के सीख लिए तो आता, दैट टेक 5-10 मिनट्स. ओके, अब इसका √2 होल पावर 4 बोले तो ये 2 मिला के 2 होता है, ये 2 मिला के 2 होता है. दैट इज 2 2 4. सो दिस इज 4 1 by 1 4 into LCM 4 लिया तो 4 minus 1 3 minus 1 2. So option 1 क्या है, secant square 45 √2 whole square 2 करेक्ट है. tan 45 1 square 1 wrong है. sin 45 1 by √2 whole square 1 by 2 wrong है. So option 1 is correct. ओके, ये वर्कशीट्स और इसका पूरा आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ. ओके, सो आज एक दिन में एक ट्रिक सीख के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं आप लोग. ट्रिग्नोमेट्री में कितना सेफ है, कुछ अलग से नहीं करेगा. देयर इज नो न्यू थिंग टू लर्न. एक ही जो है अप्लाई कर रहे हैं. ओके, थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, 45 आ रहे हैं. कोसेकेंट 45 बोले तो √2 cot 45 is 1 √2 whole square 1 square 1 minus 1 blah blah blah. ये 1 minus 1 आया तो ऑटोमेटिकली दिस विल 0. अब इसके बारे में आपको सोचो बेटे, 1 minus 1 क्या है, 0 है. 0 into anything 0 हो गया. अब ये कैसा होता, 2 minus 2 again 0. तो आंसर इज 0. समझ में आया? पूरा करे तो भी 0 जाता, लेकिन कॉमन सेंस काम करना. व्हेन इट इज सेम थिंग माइनस 0 0 into anything is 0. So एलिमिनेट हो गया. ओके, here if you take 45 √2 whole square 1 square √2 whole square again it is 0 0 बोले तो ये भी 0 हो रहा, ये भी 0 हो रहा, ये दो 0 नहीं होते. बात समझ में आया? 45 डाले तो 1 minus 1 0 √2 whole square 0, ये दो आ रहते हैं एलिमिनेटेड. नो, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ओके, ऑप्शन ये तो ना तो आंसर एक्स्ट्रा नहीं हुआ. अनदर ट्रिक, a is equal to 60 ले लो, b is equal to 30 ले लो. So ये क्या होता है, cos 60 is 2, tan 30 is 1 by √3 minus tan 60 is √2 √3 2 by √3 whole square 2 by √3 whole square 4 by 3 3 into 4 by 3 minus 8 by 3. So फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 30 √3 whole square minus 1 by √3 whole square 3 minus 1 by 3 9 minus 1 by 3 8 by 3. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन क्या होता, 2 by √3 30 secant b secant 30 क्या है, √3 2 by √3 whole square 62 square 4 by 3 minus 8 24 by 3 minus 16 by 3 wrong. तो when you एक लॉजिक अप्लाई करे, स्ट्रक हो गया, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके चले जाना है, देन यू विल गेट 100% आंसर. ओके, नेक्स्ट जो है अल्फा के जगह 45 सब्स्टिट्यूट कर दो.
45 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होता है? दिस इज 1/√2, दिस इज √2 होल स्क्वायर, cos is 1/√2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस है सॉरी k प्लस tan स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 1 क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, ये √2 एलसीएम ले तो 1 plus 1. √2 into √2, √4 it is 2. 2 plus 1, 3. So it is 9/2 plus 9/2 is equal to k plus 1 plus 1 it is 2. 9 plus 9, 18/2. 9 times 9 minus 2 is equal to k. K is equal to 7. Okay. Now अल्फा tan, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत. 45 सब्स्टिट्यूट करो, √2 प्लस 1 माइनस 1/1 माइनस √2 प्लस 1, √2 बाय माइनस √2 चलो नीचे +1 प्लस 1 सॉरी क्या है? √2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस √2 प्लस 1 2 माइनस √2 नीचे √2 कॉमन लिया तो √2 माइनस 1 आता, इसको रेशनलाइज करें तो √2 प्लस 1 भी आता. ओके, 1/√2 प्लस 1 इज नथिंग बट √2 प्लस 1 इक्वल. सो ऑप्शन 1 देखो, √2 माइनस 1 दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन 2 1 माइनस √2 दिस इज आल्सो रॉन्ग. ऑप्शन 3 √2 प्लस 1 करेक्ट. ऑप्शन 4 1 रॉन्ग. एलिमिनेट करके इजी वे में कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना, उसकी तरह है, सेम है ना. ये √2 है, ये 1 है, थीटा इज इक्वल टू 45 सब्स्टिट्यूट करें 1√2 माइनस 1/1 माइनस √2 प्लस 1 √2/2 माइनस √2. सर यहाँ √2 बोले तो देखो इसमें √2 रहता बेटा, √2 बाहर आया तो √2 माइनस 1 रहता है. 1/√2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू √2 प्लस 1. फर्स्ट ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करें 1 प्लस √2 बाय 1/√2 1/√2 √2 बाय एलसीएम ले तो √2 प्लस 1/1/√2 करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन में 1 माइनस 1/√2 बाय 1/√2 √2 माइनस 1 आता रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन में 1 प्लस 1/√2 बाय 1/√2 आता √2 प्लस 1 करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन √2 माइनस 1 आता रॉन्ग है. अब ये दो में से एक ऑप्शन है, इसको फर्दर भी क्या है अनदर एंगल करके सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आ. जनरली कॉट है ना, कॉट है बोले तो cos बाई साइन, नीचे साइन आता. ओके, ये वाला करेक्ट होने का चांस है. ओके, इसमें भी a इज इक्वल टू 90 b इज इक्वल टू 0 था, सब जीरो से आता है. a इज इक्वल टू 60 भी डाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू 60-30 डालेंगे. a इज इक्वल टू, इसका आंसर 0 है डायरेक्ट. a इज इक्वल टू 90 b इज इक्वल टू 0 डाल. ओके, तो क्या होता है सब 0 आता, सो 0 ये चांस है इसका. ओके, कोई ना कोई 0 होता है, साइन का 0 0 0 होगा. ओके, इसमें 45 डिग्री आ रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो 2 इंटू 2 होता, ये 4 होता, 2 इंटू 2 ये भी 4 होता. सो 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 0. तो कौन से ऑप्शन करेक्ट होते हैं? देखो ये 1 माइनस 1 0 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था. सेकंड ऑप्शन ये भी करेक्ट ही रहता, √4 माइनस √4 0 करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट था, 1/√2 1/4 1/√2 1/4. फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग आ. सो एक ही रॉन्ग हुआ, 3 में से कौन सा करेक्ट है. अब क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे,
30 डिग्री सब्सिट्यूट करेंगे. थीटा इज इक्वल टू 2 for 30 डिग्रीज. 30 डिग्री इक्वल टू सीकेंट 30 क्या है 2/√3 होल स्क्वायर होल पावर 4. कोसेकेंट बोले तो √3/2 होल स्क्वायर √3/2 होल पावर 4. 4/3 16/9 by 4 9/4 8/3 16/3 6/4 minus 9/4 minus 8/3 plus 3/4 32 plus 9 minus 23/12. जो ऑप्शंस में करेक्ट होता है वही इसका एग्जैक्ट आंसर होता है. ओके, अब कोसों में एंगल डाले के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो इसमें 90 0 रखो लो. साइन कॉस टैन कॉट में 90 0 नहीं लेना है. क्यों बोलते हो इन्फिनिटी आता है और वैल्यू इन्फिनिटी आता है. साइन खाली आपको देखो क्लियरली साइन आए जो कुछ भी ले सकते हैं, कॉस आए जो कुछ भी ले सकते हैं, बट टैन कॉट सीकेंट कोसेकेंट को प्रिफर 45 डिग्रीज. डोंट प्रिफर 0 या 90. इधर प्रिफर 0 90. ओके, बाकी के भी प्रिफर कर सकते हैं बट फर्स्ट में इसमें जाते हैं वैल्यूज. ओके, जस्ट आपको वैल्यूज अप्लाई करना है तो बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री के आ जाते हैं. अब इसमें थीटा इज इक्वल टू आपकी मर्जी 90 ले लो. 0 + 1 होल स्क्वायर 1 - 0 0 - 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर minus 1 स्क्वायर 1 + 1 2. दिस इज द करेक्ट आंसर. कुछ भी नहीं. एक्चुअली इसको शॉर्टकट नहीं भी कर सकते हैं तो शॉर्टकट से बहुत आसान कर सकते हैं आप. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखो. इसमें भी 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो तो 1/√2 + √2 होल स्क्वायर 1/√2 + √2 होल स्क्वायर 3/√2 स्क्वायर 3/√2 होल स्क्वायर 9/2 + 9/2 18/2. आंसर इज 9. इसका फर्स्ट ऑप्शन में देखो 1 + 1 + 7 9 करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन 1/2 + 1/2 + 7 1 + 7 8 रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन 2 + 2 + 7 11 रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन 1/2 + 1 + 7 पक्का रॉन्ग है. ओके, देखो 45 सब्स्टिट्यूट करके मैच करके आंसर लिखिए. इसमें अल्फा इज इक्वल टू 0 करके करो. थोड़ा ऑप्शन साथ आपको ये भी जो है थीटा इज इक्वल टू 0 या 90 ले लो आ जाता आपको. इसमें भी 90 0 या 45 कोसा भी रहता आंसर आता. इसमें भी साइन है ना 45 ले लो. इसमें 45 लेके कर दो. ओके, सो 45 लिए तो क्या होता बोलो ऊपर का 1/√2 आता नीचे √2 + 1 आता 1/√2 नीचे साइन सीकेंट. ओके, माइनस आ तो ये पूरा दोनों का 1/√2 बाहर निकाले तो 1/√2 + 1 1/√2 - 1. शॉर्टकट में देखो इसका रेशनलाइजिंग √2 - 1 होता है. इसका रेशनलाइजिंग √2 + 1 होता है. ओके, 1 1 कैंसिल करते 2√2 2 इज द आंसर. ओके, शॉर्टकट से बहुत जल्दी कर सकते हैं. तो इतने क्वेश्चंस कराया खाली ट्रिग्नोमेट्री में. आपको शॉर्टकट तो समझ में आएगा, बाकी की चीज़ें इसको अप्लाई आप करना है. मैं करने के बाद वंस आई डिड द शॉर्टकट्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करते वक्त यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स. तो कैलकुलेटिंग में या रिमेंबरिंग द वैल्यूज यू विल फेस सम डिफिकल्टीज, बट इट इज़ वेरी इन अ प्लेइंग मोड. जैसे पजल सॉल्व करते गेम के जैसा रहता. नॉट मेमोराइजिंग अ फॉर्मूला, नॉट डूइंग द ट्रेडिशनल मेथड. when you are going for tricks, it is like just playing puzzles. Okay, then also you need the worksheet in your hand, a playing book, practice, then only you will be very confident to attempt the MCET exam. Don't feel MCET has very difficult, MCET has very easy. Okay, MCET exam JEE एग्जाम से भी टफ नहीं है, इजी है. लेकिन जो बच्चे JEE प्रिपेयर होते हैं they will prepare in an option of negative marks.
MCET में no negative marks. Okay, and you should not refer the JEE books. MCET के लिए आयरन बुक्स है वही प्रिफर करना है. Okay, and MCET क्रैक करे, if you get 70 to 80 marks, you will be placed in a very good college and your career will be very very great. There is a difference between आपका career कैसा चूज करना आप डिसाइड करना है. ऐसे ही खेल कूद के स्टार्ट करें, 4 years गुजर लिए जानी. ओके, ऐसे ही विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एम्बिशियस, विदाउट एनी प्रैक्टिस, इफ यू गो लाइक दिस ओनली, 4 साल हो आते, 4 साल के बाद आपको जॉब मिलता, एक 20,000 का जॉब मिलता, एक 20 साल के बाद वो 2 lakhs होता. ओके, अगर एक अच्छा एम्बिशन से स्किल सीख के 4 साल पोटेंशियल से अच्छा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से कुछ गोल रख के काम करें, आपका करियर जो है 2 lakhs पे स्टार्ट होता है, 20 साल के बाद वो 20 लाख होता पर मंथ बोल रहा हूँ. दैट यू शुड डिसाइड. ये मिनिमम है. इफ यू फील यू आर एबल, यू कैन स्टार्ट योर करियर विथ 10 lakhs also per month. Okay, or else you can start up your own company also if you are having a good knowledge. Okay, वो गोल रख के पढ़ाई पढ़ो. ओके, एजुकेशन को जो है एक आई शुड रीच माई गोल्स, एम्बिशंस क्या है उसको रख के हासिल करने के लिए यूज करना. वो खेल कूद के एग्जाम है, ABC एग्जाम आप पुणे तक निकले सकते हैं, उसका आउटपुट भी वैसा ही रहता है. ओके, सो ये देखो, इसका अगर कोई समझ में आया वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो मेरे को पिन करो, व्हाट्सअप करो, देन आई एम फ्री, आई विल डू द शॉर्टकट मेथड्स %. ओके, थैंक यू.